خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ حیدرآباد میں رہنے والی پرائمری ٹیچر تسلیم دھریجو کی خبر آن نیوز پر نشر ہوئی تو خادم ڈی آئی جی حسین رند کے پرسنل گن مین پولیس اہلکار ذوالفقار دھریجو کی جانب سے ایک بار پھر سے ٹیچر تسلیم کو متمار دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں نظام الدین گمبھیر کی اس رپورٹ میں۔ جی نظام الدین، بتائیے گا ہوا کیا ہے اس معاملے میں مظلوم تسلیم دھریجو کی خبر آن نیوز ٹی وی پہ چلانے کے بعد؟ جی ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل آن نیوز پہ جو نیوز چلی تھی ٹیچر تسلیم دھریجو کی، جس کے ساتھ بڑا فراڈ ہوا، اس کے شوہر نہیں کیا، اس کو میڈیا پہ یہ آن نیوز پہ یہ نیوز چلنے کے بعد اسے دھمکیاں مل رہی ہے۔ وہی شوہر اسے دھمکیاں دے رہا ہے کہ یہ آپ میڈیا پہ نہیں آؤ اور کورٹ میں کیس وغیرہ نہیں کرو ورنہ ہم آپ کو مروا دیں گے۔ آئیے اس کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ میڈیا پہ اور یہ چینل آن نیوز پہ آپ کی نیوز چلی، اس کے بعد آپ کے ساتھ شوہر جس نے فراڈ کیا ہے وہ کیا کہتا ہے آپ کو؟ پہلے تو میں آپ سب کو یہ بتاؤں کہ جب یہ آدمی اپنے گھر سے چوری کر کے بھاگا ہے عید کے دوسرے دن، اسی وقت جو ہے میں سکھر گئی ہوں اپنے نان کے، جہاں پہ اس کے بھی کچھ رشتہ دار ہیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے خلاف جائے گی، میرے گھر نہ پہنچے۔ اس سے پہلے اس نے کیا کیا کہ جہاں پہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، میں ریٹائر ہوں جس اسکول پہ، اس اسکول میں اس نے ڈیورس پیپر ٹی سی ایس کے ذریعے بھیجے، جو مجھے ملے نہیں، جو طلاق نامہ ابھی تک قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد اس کے دوستوں کو میں نے ایک دو دوستوں کے نمبر تے فون کیا، انہوں نے کہا دیا آپ کو طلاق ہو گئی، آپ کیوں بھاگ دوڑ کریں؟ میں نے کہا طلاق نامہ مجھے ہاتھ میں نہیں ملا، اور گھر سے چوری کرنے کے بعد طلاق کیوں آ رہی ہے، پہلے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ پھر میں نے وومن پروٹیکشن میں اپلیکیشن دی، جب انہوں نے لیڈیز پولیس نے ان کو بلایا تو وہاں آگے اس نے کہا میں نے طلاق دی ہے، اور جو میں نکاح نامہ لے کے گئی اس نے کہا میں اس کو نہیں مانتا، تو لیڈیز نے اس سے کہا کہ اس نکاح نامے کو نہیں مانتے تو طلاق کہاں سے ہو گئی؟ آپ یہی دیکھیں یہ جھوٹا ہے۔ اور میں کورٹ سے جیسے ہی نکلی یہ اپنی پیشی پہ نہیں آیا، کورٹ کے باہر 2-3 پولیس والے لے کر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، اور پہلے بیان کے بعد بھی اس نے میرا نمبر بند کروایا، اور پھر ابھی بھی میرا مسلسل نمبر اس نے بند کروا رکھا ہے۔ کل شام میرے گھر آ کے مجھے دھمکیاں دے کے گیا کہ تم یہاں اکیلی رہتی ہو، یہ پردیس ہے۔ میری وزیر اعلیٰ سندھ سے، ڈی آئی جی سے، آئی جی صاحب سے، ایس ایس پی حیدرآباد سے اپیل ہے کہ ایسے مجرم کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائیں، میری چوری واپس کروائی جائے اور میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ مجھے جانی اور مالی نقصان تو یہ دے چکا ہے، بلکہ مار چکا ہے، ابھی میرے موبائل نمبر بھی بار بار بند کروا رہا ہے۔ مجھے اپنے گھر میں کسٹڈی نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ نے یہ ٹیچر تسلیم دھریجو کے ویوز سنے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ میڈیا کے بعد میرا وہ شوہر جس نے بڑا فراڈ بھی کیا ہے، اس نے مجھے آج موت مار دھمکیاں بھی کل دی ہے، اور کورٹ سے جو میں نے اپلیکیشن کی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انصاف کयो वञे، मूंखे तहफ़ुज़ खपे، मूंखे हक़ खपे। मुंहिंजी चोरी करी वई आहे पंहिंजे ई घर मां ज़ुल्फ़िकार धारेजो, जेको मुंहिंजो साबिक़ा हस्बैंड आहे। मूंखे इन खां ख़तरो आहे, मूंखे इंसाफ़ खपे। अब रुख करते हैं फाजलपुर का। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बच्चों का बगैर बोर्ड के दाखिले पर पाबंदी। फाजलपुर राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के वालिदैन स्कूल के बाहर सरापा एहतजाज। घर में महंगाई से हालात तंग हैं और ऊपर से बच्चों को तंग किया जा रहा है। गरीब लोग हैं, घर का गुजारा मुश्किल से होता है, बूट कहां से ले आएं? हुसैन सियाह जफर दरेशक, शौकत अली भुट्टो खान चांग। इस तरह बच्चों को स्कूल से निकाला जाना बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ है। मास्टर शौकत और स्टाफ की बदअखलाकी से तंग हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फाजलपुर के सरकारी टीचर ने चपरासी का रूप धार लिया। फाजलपुर के टीचर ने स्कूल के जाती गार्ड्स यानी चौकीदार को घरेलू मुलाजिम बना लिया है और खुद स्कूल के चौकीदार बन गए हैं। घरेलू साजो सामान और ज़रूरियात की चीज़ें सौदा सलफ चौकीदार खरीद कर घर पहुंचाता है। फाजलपुर के स्कूल टीचर शौकत अली खुद तो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं, साथ चौकीदार को भी गाफिल किया हुआ है। शौकत अली चौकीदार को नौकर बनाया हुआ है। इनकार पर उन्हें ब्लैकमेल करता है कि अगर मेरी बात ना मानी तो आपको नौकरी से फारिग करके घर भेज दिया जाएगा। फाजलपुर के स्कूल टीचर शौकत अली का सारा दिन गेट पर ड्यूटी देना मामूल बन गया। बच्चों के बेफाम और शनाख्ती कार्ड के फॉर्म पर तस्दीक के बाद स्टैंप मोहर लगाने और उनका काम है, और क्लास रूम में तो जाता ही नहीं। हुकूमत से अपील है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब DCO राजनपुर नोटिस लें। क्यों
ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੌਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਉਠੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਭਲਾ ਵੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਆਲੂ घिंदू घिऊ कहनी घिऊ घिंदू आटा कहनी आटा घिंदू बालें दे जूता कहनी एक नहीं वो अंदे सर भुखे सुमदो जुल्म नहीं सर जुल्म है सर। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद के नवाही इलाके चक सरदारपुर में 2 नामालूम अफराद एक शख्स पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। तेजाब से 45 साला चक सरदारपुर के रिहायशी आबिद का जिस्म मुख्तलिफ हिस्सों से झुलस गया। रेस्क्यू 1122 ने वाक़े की इत्तला मिलते ही जाए वकुआ पर पहुंचकर तेजाब गर्दी का शिकार होने वाले शख्स को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल शुजाबाद शिफ्ट कर दिया। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाने वाले जहलम के नौजवान का ग्रुप तावान के लिए अगवा किए गए 7 नौजवान का ताल्लुक गुजरात के इलाके चौपाला से है। अगवाकारों ने नौजवान पर तशद्दुद करने की वीडियोस अलवाहकीन को भेज दी। रिहाई के लिए 18 लाख रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। वीडियो में मकवी नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। नौजवान गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके बैरून मुल्क जाना चाहते थे। तुर्की के बॉर्डर से अगवाकारों ने बच्चे को अगवा किया, खानदान का ये कहना था। मजीद जानते हैं, गुजरात से रिपोर्ट कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं मेहर से। मेहर शहर में मामूली सी बारिश ने म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया की नाअहली और करप्शन का भांडा फोड़ दिया। शहर की गलियों और चौराहों पर बारिश के पानी के तालाब बन गए। तफसीलात के मुताबिक मेहर शहर में हल्की बारिश ने म्युनिसिपल इंतजामिया की नाअहली और करप्शन का भांडा फोड़ दिया। मक्खियां नालों और नालियों की सफाई न होने की वजह से बारिश का गंदा पानी शहरियों के घरों में और दुकानों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि मेहर म्युनिसिपल कमेटी का माहाना करोड़ों रुपए जारी होने के बावजूद तरक्याती काम और सफाई न होने से शहर और शहरियों की हालत खराब है। दूसरी जानिब म्युनिसिपल इंतजामिया का कहना है कि नकास आब का निज़ाम पुराना है, जिसकी मुश्किलात हो रही हैं। पानी निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। दुकानदारों का मजीद कहना है कि इंतजामिया जल्द अज जल्द गलियों चौराहों का कचरा उठाए और गंदे पानी को निकाल कर दीगर सूरत हाल में तहरीक चलाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद इस्माइल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक वेल्डन मीर रोहल ASP सर्कल तोंसा, वेल्डन मोहम्मद उनजर SHO सिटी थाना तोंसा। मोरखा 17 सितंबर 2021 को थाना तोंसा की हदूद में डकैती की वारदात हुई थी। सोक्टर रोड पर डकैतों ने मोहम्मद रफीक संचरानी से गन पॉइंट पर 125 मोटरसाइकिल मॉडल 2021 छीन लिया था। सितंबर 18 को 2021 मोहम्मद रफीक की मदीयत में पुलिस थाना सिटी तोंसा में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। रोहल सर्कल तोंसा SHO थाना सिटी तोंसा मोहम्मद उनसर का बेहतरीन टीम और IT इंचार्ज तसव्वुर अब्बास अमानुल्लाह, हेड मुहर्रर मोहम्मद इलियास की बेहतरीन कारकर्दगी गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल रिकवर करवाया, जिसकी मौजूदा कीमत 1,80,000 थी। मोटरसाइकिल मालिक मोहम्मद रफीक संचरानी के सपुर्द कर दिया। मोहम्मद रफीक ने पंजाब पुलिस के हक में नारेबाजी की और शुक्रिया अदा किया और अफसरान को फूलों के हार भी पहनाए। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। IG पंजाब की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन आयशा भट्ट ने आरिफवाला के थाना सदर में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में अवाम की शिकायत सुनकर उनके फौरी अजाले के अहकाम जारी किए। इसी पर आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट देखिए। IG पंजाब की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का मुख्तलिफ थाना जात में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। आरिफवाला के थाना सदर में आवाम की शिकायत और मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनकाद किया गया। खुली कचहरी में साइलिन की कसीर तादाद ने थाना सदर पुलिस के मुतलका अपने मसाइल बयान किए, जिस पर SP इन्वेस्टिगेशन आयशा भट्ट ने साइलिन के मसाइल और शिकायत सुनकर इनके फौरी हल के अहकाम जारी किए। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन आयशा भट्ट ने कहा कि खुली कचहरी लगाने का मकसद आवाम के मसाइल सुनकर हकीकी मानों में उनकी दाद रसी करना है। अब रुख करते हैं खैरपुर नाथन का। खैरपुर नाथन शाह हालिया तेज बारिशों के बायस तहसील के मुख्तलिफ देहातों में चावल की खेती ज़ेरे आब आ गई। खैरपुर नाथन शाह में सिम नहर को मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बड़े शगाफ पर किए गए। नहर को शगाफ पड़ने से चावल की खेती ज़ेरे आब आ गई। काश्तकार मायूसी का शिकार। कई बार मुंतखब नुमाइंदगान को दरख्वास्त दी कि नहर की खुदाई करके नहर के दोनों अतराफ को मजबूत करवाया जाए, लेकिन MPA और MNA सुनने को तैयार नहीं। काश्तकार मुंतखब नुमाइंदगान पर फट पड़े। बारिश का पानी और नहर के शगाफ पड़ने से पानी हमारे गांव के कच्चे घरों में दाखिल हो चुके हैं। कभी भी कच्चे मकान गिर सकते हैं। तेज बारिश के बाद सिम नहर को शगाफ पड़ने से हमारे खेतों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
सिम नहर और दीगर नहरों को मजबूत करके खेतों के नुकसान का भरपाया दिया जाए, काश्तकारों का हुकूमत सिंध और हल्के के मुंतखब नुमाइंदगान से मुतालबा है। पीपी जो हुकूमत जूने जो है जरदारी जो है पार्टियां हिते 15 साल है न तो सिम शाख के खाटी कोने को एक घारो लगो आवाज़ असांजो सिमशाक असांजो सॼो ॻोठ ज़मीनूं 1000 एकड़ बुॾी आहिनि असां। अब रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में जालिम सेल्फी ने एक और जान ले ली। सेल्फी बनाने की शौकीन बीवी नहर लॉयर बारी दोआब में गिर गई। बीवी को बचाने के लिए खावंद ने भी नहर में छलांग लगा दी। खावंद को बचा लिया गया जबकि खतून गहरे पानी में डूब गई। रेस्क्यू टीमों ने नाश की तलाश शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक उकाड़ा में मियां बीवी जालिम सेल्फी की भेंट चढ़ गए। नवाहे इलाके 39 के रहायशी मियां बीवी नदीम जफर और किंजा नदीम नहर लॉयर बारी दोआब पर जाकर सेल्फी बना रहे थे कि अचानक किंजा नदीम का पैर फिसल गया और वो नहर में गिर गई। बीवी को बचाने के लिए शोहर नदीम जफर ने भी नहर में छलांग लगा दी मगर वो बीवी को ना बचा सका। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू के गोताखोर ने खामन को जिंदा बचा लिया जबकि खातून के नाश को तलाश करने के लिए कश्ती और प्लंजर की मदद से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जिंदा बच जाने वाले शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से हमारे नुमाइंदे उस्मान शमरोज भट्टी से, जहां पर नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना ने मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स का विजिट किया जिनमें जमनीजियम और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शामिल हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ ने कोरोना वैक्सीन पर काम करने वाले स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा और कोरोना SOPs को फॉलो करने पर जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने मर्दों का काउंटर अलग लगाने का कहा, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल अजीमाबाद का विजिट किया जहां पर वो बच्चों के साथ घुल मिल गए। उनका कहना है कि 12 साल से ऊपर बच्चों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया हैं, उन्हें किसी भी सूरत कोरोना जैसी खतरनाक मर्ज का शिकार नहीं होने दे सकते। स्कूल में सफाई और पीने के साफ पानी की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अब रुख करते हैं खैरपुर नाथन का। खैरपुर नाथन शाह हुकूमत की जानिब से दिए गए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ब्रांच समेत शहर की सारी ATM बंद। 1 तारीख को तनख्वाह और पेंशन लेने आए मुलाजमीन शदीद परेशानी का शिकार। इस हवाले से मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली की ये रिपोर्ट। खैरपुर नाथन हुकूमत की जानब से दी गई नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच समेत शहर के सारी ATMs बंद। 1 तारीख को तनख्वाह और पेंशन लेने आए मुलाजिम शदीद परेशानी का शिकार। शहर के मेन ब्रांच नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर मुलाजिमिन की लाइनें लग गई। इंतजामिया खामोश तमाशाई। ATM बंद होने पर मुलाजिमिन का कहना है कि हम जब भी हर माह की 1 तारीख को तनख्वाह लेने आते हैं तो शहर के सारे बैंक के ATM मशीन इंतजामिया जानबूझकर बंद कर देती है, जबकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ATM मशीन कई बरस से बंद है, जिसके बायस हमारे बूढ़े मर्द खवातीन और दीगर मुलाजिमिन को तनख्वाह लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खुसूसन बूढ़े मर्द और खवातीन को पेंशन लेने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाथन शाह की जो मुख्तलिफ ATM जो है वो मुसलसल बंद होने की वजह से दुश्वारी का इनको सामना है। यहाँ शहरियों का मुतालबा है जल्द से जल्द शहर की जितनी भी बैंक से उनके ATM जो है बहाल करके इनकी दुश्वारी दूर की जाए। अहमदपुर शर्किया अजमल जेबल की रिपोर्ट से तब्दीली सरकार ने अवाम को महंगाई के तूफान में 22 करोड़ अवाम को लावारिस छोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक अहमदपुर शर्किया के साबिक MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मखतूम सैयद अली हसन गिलानी ने साबिक सूबाई टिकट होल्डर मखतूम सैयद आमिर शाह और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन शहरियों के हमरा मुल्तान इजलास से कबल रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकार ने गरीब आवाम को, आम आदमी को महंगाई के तूफान में, महंगाई के समंदर में गोते लगाने के लिए छोड़ दिया है, लावारिस छोड़ दिया है 22 करोड़ आवाम को। इंशाअल्लाह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया है कि अब रुख करते हैं लियाकतपुर का। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में आए रोज इजाफा शहरियों के लिए शदीद परेशानी का सबब बन गया। शहरी महंगाई के खिलाफ फट पड़े। गुज़श्ता रोज हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल 4 रुपए लीटर जबकि डीजल 2 रुपए फी लीटर बढ़ा दिया गया, जिस पर अवाम शदीद परेशान है। अवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाए और गरीबों को रिलीफ दे।
अगर वजीर आज़म इमरान खान आवाम को रिलीफ नहीं दे सकता, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकता तो आवाम की जान छोड़ दे और असम्बलियां तहलील करके दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। महंगाई में पिसी आवाम का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एक माह में 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करना हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जितनी भी हुकूमतें गुजर चुकी हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई इस हुकूमत में है। अगर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से रिकवरी कर सकता है तो हुकूमत करे, अगर नहीं कर सकता तो हुकूमत छोड़ दे, उन चोरों को आने दे। महीने में 2 बार कोई पेट्रोल बढ़ाता है, महीने में 1 बार पेट्रोल बढ़ता है, फिर भी समझ में आता है। ये महीने में 2 बार पेट्रोल बढ़ा रहा है। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान चौहान से थाना अरोब के इलाके शालीमार टाउन में शहरी के घर डकैती की वारदात पेश आई। डाकू 1 करोड़ से जायद की नकदी जेवरात लूट कर फरार हो गए। कार सवार डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 30 तोले सोना और 68 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद 5 डाकू कार में सवार होकर फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश के लिए शहर भर में नाकाबंदी करवाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी कर दी। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले हमारे नुमाइंदे सैयद ज़हीरुल हसन गैलानी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर तहसील मिंचनाबाद में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त न हो सकी। रेस्क्यू और पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडी को THQ अस्पताल मिंचनाबाद मुंतकिल कर दिया। अब रुख करते हैं भक्कर का। अफसरान की इज्जत करते हैं और इज्जत करवाना भी जानते हैं। किसी भी ऑफिसर को मुलाजमीन से गाली गलोच की इजाजत नहीं देंगे। जिला सदर अपील भक्कर। तफसीलात के मुताबिक सदर एजुकेशन विंग अदनान गुज्जर, सैफुल्लाह मलिक, जावेद जामी, तारिक मसूद मलिक और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि किसी अफसर को अपनी बेइज्जती करने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसे लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हड़ताली कैंप में दर्जा चहारम और क्लर्क बरादरी की भरपूर शिरकत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चौधरी मकसूद के फौरी तबादले का मुतालबा किया गया। हड़ताली कैंप गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा ताकि असां उस जेड़ा मुतालबा रखूं। सारी ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई असां को पाया तकमील तक पहुंचा सकें। फैसला मैं उसे तायद करना। जिस तरह राना अकरम साहब ने फैसला किया है कि चौधरी साहब को सरेंडर करके, जिस तरह राना अकरम साहब ने, मैं बतौर ऐप का सदर जो आज का एहतजाज हो रहा है, मैंने सिर्फ अपने ऐप का के हवाले से अपने जो क्लरिकल स्टाफ है, मैंने सिर्फ इनका साथ देना है, ना कि मैं आला ऑफिसर का साथ, आला अथॉरिटी या आला ऑफिसर का साथ दूँ। अगर उन्होंने करप्शन करनी है, गवर्नमेंट का खाया, हमारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। DC जाने, CO जाने और वो जाने। खबर शामिल करते हैं कोटरी से, जहां पर मजदूर नौजवान ने जामशेरो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल मजदूर नौजवान साजिद सोलंगी, राशिद सोलंगी, अब्दुल सत्तार सोलंगी, फरूक अबड़ू और दूसरों ने बताया कि सिंध हुकूमत हमको मुसलसल मजदूर कोटे से नज़रअंदाज कर रही है। हम लोग गैर तालीम याफ्ता हैं, मगर हुकूमत की तरफ से हमें कोई भी मुलाजमत नहीं दी जा रही, कोई भी सुनने वाला नहीं। साजिद सोलंगी ने बताया कि जामशेरो के DC ने 3 साल पहले मेरा नौकरी का ऑर्डर निकाला था, मगर ऑर्डर मुझे देने की बजाय किसी गैर मजदूर को रिश्वत के इवज दे दिया। मजीद कहा कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, हम मजदूर अफराद को मुलाजमतें दी जाएं ताकि हम लोग भीख मांगने से बच सकें। माज़ुरन खे नौकरी खपे। साईं असां माज़ूर आहियूं। असांखे 5-6 साल थी विया आहिनि अप्लाई कंदा पिया अचूं। कराची में भी ॾेई आहियूं इंटरव्यू, शाहबाज़ बिल्डिंग में ॾेई आहियूं, सिंध यूनिवर्सिटी में ॾेई आहियूं, मेराणी यूनिवर्सिटी में ॾेई आहियूं, पर असांखे किथां भी को भी रिस्पॉन्स न मिलियो आहे। उन जे बावजूद भी असां पढ़ियल लिखियल आहियूं, इंटर क्लियर आहे, कंप्यूटर कोर्स कया आहिनि। हिन अहिड़े माज़ूर तबिके में पोइ बि असां पढ़िया लिखिया आहियूं, हर शइ कयो आहे, पंहिंजे उन जे बावजूद 5-6 साल थी विया आहिनि असांखे नौकिरी नथी मिले। घणेई भॻा ॾुका आहियूं, सभु कंहिंखे अपील कई आहे, हर कंहिं ॾे विया आहियूं, त बि असांखे सभु इहे था चवनि त बाबा तव्हांजो कमु थींदो, सब्र कयो, सब्र कयो, सब्र कयो। 5-8 साल थी विया आहिनि। खबर शामिल करते हैं तानियावाला से। थानागढ़ की हदूद में डाकू बेलगाम हो गए। अपने नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन थराना की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अवामी तहरीक पंजाब के जनरल सेक्रेटरी से डाकुओं ने उनकी नई गाड़ी छीन ली। तफसीलात के मुताबिक मलिक करामत पाकपतन से तंजीमी इजलास में शिरकत के बाद फैसलाबाद वापस आ रहे थे कि थानागढ़ की हदूद में डाकुओं ने नकदी, मोबाइल फोन और गाड़ी छीन ली। डाकुओं ने गाड़ी छीनने के बाद मलिक करामत को 8 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा।
मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक खुरम नवाज गंडापुर ने डाकुओं की गिरफ्तारी और रिकवरी का मुतालबा कर दिया। उनका मजीद कहना था कि रोड डकैती की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है। अवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।